A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we will be continuing with the 7th chapter, that is operating system. So students, before going further and discussing further topics in this chapter, let's just discuss some few key points that we have already discussed in this chapter. So we started this chapter with the definition of operating system, that what is an operating system, and after that we discussed about Windows and what are the advantages of Windows, and after that we discussed about the types of operating system, that we have single user operating system, multi user operating system, multitasking operating system. And after that we also discussed about some of the features of operating system. Then we discussed about the different types of operating system that are present in today's world, that is Solaris, BOS, Android, which is nowadays used in smartphones. Okay, so now today we will be continuing with another type of operating system, that is Symbian. So let's get started with this topic. Symbian. This operating system is developed by Symbian Limited. तो ये हमारा जो operating system है ये Symbian Limited ने develop किया था. It is world famous leading operating system which is being used by most advanced smartphones. तो जो हमारे पास Symbian operating system है, this is one of the leading open operating system जो कि smartphones में use किया जाता है. It allows the users to install application. फ़ोन जस्ट लाइक विंडोज़ अलाउज टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस ऑन पीसी. जैसे कि हम विंडोज़ के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसी तरीके से हम सिम्बियन की हेल्प से भी डिफरेंट एप्लीकेशंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड सिम्बियन यूजेस GEOS, दैट इज़ ग्राफिकल एनवायरनमेंट ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay. The language used for programming are C++, Java MIDP, Java Personal Profile, OPL, Visual Basic, C#, Python, Simkin, Flashlight, and C. So here we have so many languages which are used for programming this particular operating system. So here we have C++, Java MIDP, Java Personal Profile, OPL, Visual Basic, C#, Python, Simkin, Flashlight, and C. But the most popular language for Symbian is C++. The first version of the Symbian was OS 5.0 and later was upgraded to Symbian OS 5.1, then Symbian OS 6.0, Symbian OS 6.1, Symbian OS 7.0, Symbian OS 7.0S, then Symbian OS 8.0, after that Symbian OS 8.0A, then Symbian OS 8.0B, etc. So now the latest version of Symbian OS is 9.5. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं नोकिया की, तो नोकिया के अंदर Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था. ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव अनदर टॉपिक, दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट. Okay, now, so it plays important role to activate and control the peripheral devices in a computer system. So students, all of you must be knowing कि जब हम अपने कंप्यूटर्स में डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ ड्राइवर्स. Okay, the entire activity is managed by drivers. So as I told you कि जितने भी हमारे पास peripheral devices होते हैं उनकी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है. Drivers are short programs which operates when peripheral devices send command to them. तो ड्राइवर्स जो होते हैं वो शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेट तभी होते हैं जब पेरिफेरल डिवाइसेस उनको कुछ कमांड्स या कुछ सिग्नल्स भेजते हैं. Thus, a driver is a software
that knows how to deal with each device and are needed for the peripherals attached to the computer system. So that's why जो हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर आप इनको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिनको ये पता है कि हर एक पर्टिकुलर डिवाइस से किस तरीके से डील करा जाए, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ताकि जब भी हमारे पास जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जब भी वो कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम डील करें. ठीक है. सो विदाउट ड्राइवर्स तो योर पेरिफेरल डिवाइसेस कैन नॉट वर्क. सो फॉर द पेरिफेरल डिवाइसेस टू वर्क वी नीड दीज ड्राइवर्स. Okay. After this, we have another topic, that is operating system. Okay. So now here the topic is about the kernel. Okay. So kernel is defined as a base layer of the operating system. So students, all of us know कि operating system क्या होता है, लेकिन operating system का एक major portion है, एक major layer है जिसको हम kernel बोलते हैं. So what is kernel? It manages various resources of computer system like RAM and CPU. तो जब हम कर्नल की बात करते हैं तो कर्नल बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि हमारी रैम हो गई, ठीक है, जैसे कि हमारी मेमोरी हो गई और हमारा CPU हो गया. इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद अदर हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. तो हमारा जो कर्नल है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस लेयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वाई इट कम्युनिकेट्स विद द अदर हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स. Okay, since a kernel handles numerous key procedures, it must be stacked toward the start of the boot arrangement when a PC begins up. Okay, as I told you, because the kernel is a very important layer of the operating system and it handles many things, so इसकी जो booting, जो इसका स्टैकअप होगा, ये बिल्कुल हमारा बूटिंग प्रोसेस के स्टार्टिंग में होगा जब भी आपका पीसी बिगिन करता है. ठीक है. तो कर्नल का बूटिंग प्रोसेस सबसे पहले होगा जब भी आपका पीसी वर्क करेगा. द कर्नल प्लेज आउट अ फ्रेमवर्क चेक एंड परसीव सेगमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेसर, GPU एंड मेमोरी. इट लाइकवाइज चेक्स फॉर एनी एसोसिएटेड पेरिफेरल्स. तो अगर सपोज कीजिए कि कोई भी नया डिवाइस अटैच होता है या फिर कोई पेरिफेरल डिवाइस अटैच होता है, तो इट कीप्स ऑन चेकिंग ऑल दीज थिंग्स. As the OS loads and the graphical UI shows up, the part continues running. तो हमारा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शो होना शुरू हो जाता है, तो जो कर्नल है वो अपना पार्ट प्ले करता रहता है और ये बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है. नाउ इंडीड इवन आफ्टर द OS हैज़ कम्प्लीटली स्टैक्ड, द कर्नल कीप्स ऑन रनिंग आउट ऑफ साइट ओवरसीइंग फ्रेमवर्क एसेट्स. तो जैसे ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कम्प्लीटली स्टैकअप हो जाता है, तो जो कर्नल है वो आउट ऑफ साइट चला जाता है और सब जितने भी हमारे फ्रेमवर्क एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंपॉर्टेंट हमारे टास्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको वो देखना शुरू कर देता है. सो दैट्स वाई कर्नल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, now we will talk about the different types of kernels. So the different types of operating system kernels exist, but following are the two most important kernels. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत डिफरेंट टाइप्स के कर्नल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो बहुत पॉपुलर कर्नल्स की बात करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव मोनोलिथिक कर्नल एंड द अदर वन वी हैव इज माइक्रो कर्नल. So first of all, we'll talk about the monolithic kernels. So now, a monolithic kernel is a solitary code base or a piece of code that gives all the important administrations offered by the operating system. तो जब हम बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल की, सो हमारा जो मोनोलिथिक कर्नल है इसके ये टोटली एक कोड बेस है, या फिर आप बोल सकते हो एक पीस ऑफ कोड है जो आपको सारी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशंस देता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम मोनोलिथिक कर्नल की बात करते हैं तो बेसिकली जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा जो मोनोलिथिक कर्नल है, ये एक टाइप का आर्किटेक्चर है जो कि टोटली कर्नल स्पेस में वर्क करता है.
Okay, so it is an oversimplified outline and makes a very much characterized correspondence layer between the equipment and programming. तो ये एक बहुत सिंपल सी लेयर है जो कि इक्विपमेंट और प्रोग्रामिंग के बीच में काम करती है. ओके, तो हमारी जो मोनोलिथिक कर्नल है इसके अंदर एक इंटरफेसिंग होती है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटरफेसिंग विद डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट इंटरप्ट चैनल्स या फिर डिफरेंट हार्डवेयर ऑपरेटर्स, तो हमारी जो इंटरफेसिंग होती है डिफरेंट डिवाइसेस से वो सब होती है मोनोलिथिक कर्नल्स की हेल्प से. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द मोनोलिथिक कर्नल्स. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द माइक्रो कर्नल्स. Now, microkernels have an indistinguishable capacity as monolithic kernels. तो monolithic kernels का अपना एक अलग यूसेज था और microkernels का अपना अलग एक यूसेज है. However, they are intended to be as little as could be allowed. तो अगर हम microkernels की बात करते हैं तो microkernel एक बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन है वो आपका रहता है मोनोलिथिक कर्नल का और बहुत छोटा पोर्शन होता है आपके माइक्रो कर्नल का. Rather than dealing with every one of the assets from the solitary code base, the bit handles just the most fundamental capacities. तो जैसे कि हमने बात करी थी मोनोलिथिक कर्नल की, तो मोनोलिथिक कर्नल्स में क्या होता है कि जनरली हम सारे डिवाइस ड्राइवर्स का यूसेज करते हैं वहाँ पर, लेकिन माइक्रो कर्नल्स के अंदर हमारी जो यूसेज रहती है वो बहुत कम होती है. हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ही काम करते हैं, कुछ फंडामेंटल कैपेसिटीज़ के ऊपर ही काम करते हैं. तो जनरली हम माइक्रो कर्नल के अंदर सर्वर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम सारी वर्किंग को बहुत ईजीली देख सकें. For instance, device drivers are ordinarily incorporated into a monolithic kernel. जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उसका यूसेज हम मोनोलिथिक कर्नल में करते हैं. However, they would be a part of partition modules in a microkernel. लेकिन उनका छोटा सा पार्ट हम उसके छोटे से मॉड्यूल्स का यूसेज हम माइक्रो कर्नल्स में करते हैं. तो ये जो पूरा प्लान है ये बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सर्वर्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं मोनोलिथिक कर्नल के अंदर, तो अगर जब हम सर्वर्स का काम करते हैं तो इस वजह से हम डिफरेंट जो सिस्टम क्रैशेस हो जाते हैं सिस्टम के अंदर और जो भी सिक्योरिटीज़ पे काम है वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं और अपने सिस्टम को क्रैश होने से बचा सकते हैं माइक्रो कर्नल्स की हेल्प से. So students, this was all about the monolithic kernels and micro kernels. So that's all for today. We will be discussing about this chapter in detail in the next class. Till then, take care and please do watch the video and also read the chapter from the book. Okay, thank you so much.